जो है हाथ में उसकी बात करो। चलो, सर मजबूरी में रह गया था सर, जानबूझ के थोड़ी छोड़ा था। मजबूरी में रहती चीजें आदमी की, यार जानबूझ के भी रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्विज आपका, ये देखेंगे उसके बारे में बाद में। अभी आपका जो है क्विज की डेट डिसाइड करेंगे, 16 या 17 रख लेंगे, ठीक है ना? जैसा आप बताएं, 16 चाहे तो 16 या 17। तो लास्ट क्लास में नॉर्मल कर्वेचर, आई थिंक आई वाज टॉकिंग अबाउट नॉर्मल कर्वेचर। दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो पढ़ा रहा हूँ मैं आजकल। तो नॉर्मल कर्वेचर में वी नो दैट दिस kn is the normal curvature and it is given by this formula bij dui duj. I am just recalling this thing we have done in the last lecture. Gij dui duj. So we saw that this bij gij they are the variants of surface. We can say this kn depends on this dui over duj. We can say that this depends on du1 over du2. For a curve, kn is the normal curvature. So we have one theorem. It is a theorem that all curves, number 1 कह दे रहे हैं यहाँ पे, all curves on a surface which have the same line of tangent, same line as tangent, which have the same line as tangent, have the same normal curvature. Same normal curvature. Kn. So if at a point you have curves, at a point you may have so many curves, different curves. So if they all have same tangent line at a point, अगर same tangent line है, so they will be having the same normal curvature because this depending on this du1 over du2, or you can say kn depends t. This kn depends on t. ये भी कह सकते हैं. Then we have Meusnier theorem. N-I-E-R, Meusnier theorem. और फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, म्यूजनियर फॉर्मूला. What it says? So suppose you have a curve on a surface. It is on some surface sigma, and you have curve, and at a point P on the curve, suppose it is your tangent, and it is normal, principal tangent, principal normal, and suppose this is your capital N. Capital N is what? Capital N क्या होता है? Normal to the surface, है ना? ये हमेशा सरफेस के नॉर्मल रहेगा. कोई भी कर्व आपके सरफेस पे होगा तो ये हमेशा इस सरफेस के नॉर्मल है, यानी कि हमेशा कर्व के नॉर्मल होगा. ये टी एन आपको पता है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो सपोज दिस इज सम एंगल बिटवीन टी एन एंड सम एंगल इज अल्फा. ये कोई एंगल है नॉर्मल और फेस पे नॉर्मल एंड नॉर्मल और द सरफेस के बीच में. इट इज योर सम कर्व सी. So let alpha be the angle between n and n, कैपिटल N एंड स्मॉल n. सपोज इनके बीच में एंगल अल्फा है, तो
if I will take the dot product, it will be cos alpha, na? Because these two are unit normal vectors. This is principal normal, unit normal. This capital N is also unit normal. So product will be cos alpha. So if I am taking the normal curvature Kn, you know, it is given by Kn dot n, na? Vector. Normal curvature is Kn dot n, or you can say write K dot n. K dot n लिख सकता हूँ. याद है भाई K को हमने क्या लिया था? Kg प्लस Kn. ये तो था K जो था आपका, है ना? अगर आप Kn लेंगे तो K डॉट n ले लूंगा तो Kn डॉट, क्योंकि Kn आपका n का कंपोनेंट है, Kg g का उसका कंपोनेंट है क्यूडेसिक कर्वेचर का. तो आई कैन राइट K डॉट n, और K की वैल्यू क्या होती है? K वाज T डैश, तो T डैश कितना होता है? कप्पा n, कप्पा n डॉट n, ये तो होता है. K is your curvature and this is curvature. This can be write as T dash is kappa n, है ना? K की वैल्यू आपकी कप्पा n थी. वैसे भी जो K था, which is your normal curvature, it was कप्पा n. जो आपने लिया था curvature vector, this K is the curvature vector. तो यहाँ पर हमने इस K की वैल्यू रख दी जो T dash होता है कप्पा n dot n. So your Kn is kappa n dot n, where this is the kappa is the curvature of the curve C. Curvature of the curve C. Curve C. So it means what? Kn from theorem 1 you got Kn depends on T, and from here you got that. अब ये n dot n कितना है? N dot n is cos alpha, है ना? So this I can write kappa cos alpha. ये from this n dot n is cos alpha. So this Kn, your normal curvature depending on this cos alpha also, and this depending on T also. Cos alpha क्या है? ये तो आपका फॉर्मूला हो गया Kn is equal to cos alpha. This is म्यूजियर थ्योरम. Kn is equal to K cos alpha. इससे कुछ ऑब्जर्वेशन निकालेंगे. ठीक है, देखिए क्या ऑब्जर्वेशन है. तो आपके पास ये आ गया कि दिस Kn योर नॉर्मल कर्वेचर वेक्टर. Kn है तो नॉर्मल कर्वेचर है ना. दिस इज कप्पा cos alpha. ये कप्पा है, ध्यान रखना कर्वेचर. इसे हम नंबर डाल दे रहे हैं, सम नंबर. इसे नंबर 2 कर दीजिए, 1 इसे कर देते. इट इज नंबर 1. So here you have some consequences, observations. First observation is what? That this Kn is depends on T, and from theorem 1. And cos alpha, ये cos alpha किससे डिपेंड करेगा? cos alpha तो डिपेंड करेगा n पे, क्योंकि कैपिटल N तो इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना. इस n पे डिपेंड करेगा. ये डिफरेंट कर्व्स के लिए n आपका मूव कर रहा होगा, कहीं पर n जो है अल्फा कुछ भी, तो ये जो एंगल बनेगा अल्फा, ये स्मॉल n की वजह से बनेगा. कैपिटल N विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. इट मींस व्हाट? cos alpha डिपेंड्स ऑन n. n किस तरीके से मूव कर रहा है, कर्व आपका, हाउ द कर्व इज रोटेटिंग और मूविंग, दैट विल बी द एंगल अल्फा. so this cos alpha depends on n, है ना. और cos alpha का मतलब क्या है? kn. cos alpha का मतलब kn है ना, क्योंकि कर्वेचर एंड cos alpha. तो अगर cos alpha n पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब kn डिपेंड कर रहा है n पे. क्योंकि cos alpha depends on n and hence kn depends on n.
फ्रॉम टू, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं फ्रॉम टू. So your kn depends on t, यहाँ लिख देना चाहे तो, since this n is fixed for the surface, इसलिए n फिक्स्ड है सरफेस के लिए, तो इसलिए सिर्फ n पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल n पे. तो kn depends on t, kn depends on n. This means what? You can say that kn, I can say kn depends on t and n, है ना. इन दोनों को मिला के हम कह सकते हैं t and n पे डिपेंड करेगा. और t and n से क्या बनता है आपका? What is t and n? Osculating plane, है ना. So I can say, so that means we can say that kn, और kn का मतलब क्या हो गया? एंड हेंस kn क्या है? अगर मैं इससे कर्वेचर लिखूं तो kn अपॉन cos अल्फा. तो आई कैन से एंड हेंस कर्वेचर, कर्वेचर कप्पा डिपेंड्स ऑन द ऑस्कुलेटिंग प्लेन. शॉर्ट में मैं ओपी लिखता हूँ ऑस्कुलेटिंग प्लेन, है ना. ये तो कह सकते हैं क्योंकि k क्या आपका प्रोपोर्शनल टू दिस, प्रोवाइडेड cos अल्फा नॉट जीरो, है ना. ये कंडीशन है क्योंकि यहाँ पर आपका कप्पा क्या हो गया, ये प्रोपोर्शनल टू kn. तो किसी भी कर्व का कर्वेचर डिपेंड्स ऑन द ऑस्कुलेटिंग प्लेन, हाउ द ऑस्कुलेटिंग प्लेन इज, क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है? t और n पे, प्रोवाइडेड cos अल्फा इज नॉट जीरो. ठीक है. और अगर cos अल्फा जीरो है, इफ cos अल्फा इज जीरो, देन cos अल्फा जीरो कब होगा भाई? कब होगा? 90 पे, यस सर. है ना. यानी कि क्या होना चाहिए? कैपिटल N इज परपेंडिकुलर टू स्मॉल n. और ये n अगर स्मॉल n के परपेंडिकुलर हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन है ये क्या बन जाएगा सरफेस का? बताइए. n इस n के परपेंडिकुलर हो जाए जब पूरा, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ कि आपके पास tn तो n बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गया इस tn के, और tn जो है वो ऑलरेडी परपेंडिकुलर होते हैं. तो tn जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन बनेगा वो अगर परपेंडिकुलर हो गया n के, तो वो क्या बन जाएगा? दैट विल बी द टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस, है ना. सरफेस का टेंजेंट प्लेन क्या होगा? जो इस n के परपेंडिकुलर हो. टेंजेंट प्लेन हमेशा n के, कैपिटल N के परपेंडिकुलर होता है. तो ये अगर cos अल्फा जीरो है यानी कि n परपेंडिकुलर टू n है, तो क्या होगा? द ऑस्कुलेटिंग प्लेन इज द टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस. ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन इज नॉट, ये हमेशा टेंजेंट प्लेन नहीं है ऑस्कुलेटिंग प्लेन के. टेंजेंट प्लेन कब होगा? जब ये अल्फा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, तभी तो टेंजेंट प्लेन बनेगा. क्योंकि टेंजेंट प्लेन क्या होता है सरफेस का? जो n से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वो प्लेन. ठीक है. तो n से जब भी स्मॉल n 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वो आपके केस में क्या होगा? ऑस्कुलेटिंग प्लेन इज द टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस. बात समझ में आ गई? यस सर. हाँ. तो hence I can say this is your theorem 2. All curves on a surface through a point P which have the same osculating plane through P have the same curvature.
kappa at P. All curves through a point which have the same osculating plane through P have the same curvature. क्योंकि same osculating plane का मतलब क्या होगा कि they will be having by this one observation है ना, they will be having same curvature provided the osculating plane is not the tangent plane to the surface, है ना, provided यानी कि cos alpha is not zero, provided cos alpha, क्योंकि अगर जीरो पे हुआ तो उस केस में ऑस्कुलेटिंग प्लेन ही आपका टेंजेंट प्लेन बन जाएगा, अगर नहीं है उस केस में आपका कर्वेचर के जो होगा वो डिपेंड करेगा ऑस्कुलेटिंग प्लेन में। तो अगर आपके पास किसी पॉइंट से बहुत सारे कर्व्स हैं, उन सब का ऑस्कुलेटिंग प्लेन सेम है तो उन सबका कर्वेचर भी सेम होगा। ठीक है, ये एक थ्योरम है आपकी। ये बात समझ में आई यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन किया, ये ऑब्जर्वेशन यहाँ से बताइए। Yes, sir. Next thing we have principal curvature. Principal curvature. Principal curvatures, Gaussian and mean curvature. And mean curvature. Different curvatures हैं ये, principal curvatures, Gaussian curvature and mean curvature. क्या है देखो ये? So from Kn, the expression from Kn, for Kn, from 1 से लिखते हैं, for 1, from 1 for Kn. क्या एक्सप्रेशन थी आपकी? ये जो लिखी थी मैंने, ये एक्सप्रेशन लिखी थी हमने Kn के लिए, है ना। This can be written as Kn is equal to B11 plus 2B12 lambda plus B22 lambda square upon G11 plus G12 lambda plus G22 lambda square. Above equation 3 can be written as this by putting lambda is equal to du2 over du1 in 1. ये जो 1 इक्वेशन है यहाँ पर, इसको आप ओपन करें और ओपन करके du2 ओवर du1 को अगर मैं लैम्डा पुट कर दूं तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी ये। इसमें लैम्डा में देखिए, लैम्डा क्या है यहाँ पर, ये है ना। तो इसका ओपन करेंगे, क्या आएगा, b11 du1 स्क्वायर प्लस 2b12 du1 du2 प्लस b22 du2 स्क्वायर, du1 से डिवाइड कर दें और उसे लैम्डा मान लेंगे तो एक आपके पास इक्वेशन बनेगी लैम्डा में क्वाड्रेटिक इन न्यूमरेटर, क्वाड्रेटिक इन डिनोमिनेटर। ठीक है, ये आएगी। And this is a function, so this Kn is a function of lambda now. Lambda के terms पे, lambda का मतलब ये du2 over dl. This is the direction. So here you can say thus this Kn is a function of lambda, and hence will have maximum and minimum values. Will have max and minimum values. Say K1 and K2. Say K1 and K2 obtained by putting dkn over d lambda is equal to 0. ठीक है,
ये kn आपका लैम्डा का फंक्शन है, तो अगर ये लैम्डा का फंक्शन है तो इट विल बी हैविंग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज, है ना। kn क्या है, आई कैन से दिस kn इज अ फंक्शन ऑफ लैम्डा। तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज होगी, किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज कैसे निकालते हैं, बाय पुटिंग टी के एन ओवर डी लैम्डा इज इक्वल टू 0, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो उसके स्टेशनरी पॉइंट्स हम निकालते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। वो जो स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं उन्हीं पे आपको मैक्सिमम मिनिमम मिलता है ना, दैट इज द थ्योरम, फॉर्मेट्स थ्योरम। So you can find kn, if kn is a function of lambda, so if I want to find, it will be having some maximum minimum values। तो maximum minimum values हम कैसे निकालेंगे, t kn over d lambda is equal to 0 पुट करके, है ना। So these maximum minimum values, these are called the principal curvatures। These are called the principal curvature। Principal curvature k1 and k2 of the curve at p। Okay, तो प्रिंसिपल कर्वेचर्स क्या है, इसलिए ने प्रिंसिपल कर्वेचर्स लिखा था। तो दे आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस लैम्डा। ये क्या है, ये नॉर्मल कर्वेचर को हमने जो लैम्डा टर्म्स में लिखा, तो ये आपकी इक्वेशन बनी, इन फंक्शन ऑफ लैम्डा हुआ, इसकी जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज आएंगी दैट इज द प्रिंसिपल कर्वेचर। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके निकालते हैं कि वैल्यू क्या आती है, k1 k2 है क्या, व्हाट इज दिस। सो टू ऑब्टेन दिस प्रिंसिपल कर्वेचर आई विल फाइंड इट। टू ऑब्टेन the principal curvature राइट 3। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का डी के एन ओवर डी लैम्डा इक्वल टू 0 पुट करना है। तो पहले इसे थोड़ा सा मैं अरेंज करूंगा, आई विल अरेंज सम टर्म्स देन आई विल फाइंड डी के एन ओवर डी लैम्डा। so to obtain the principal curvature, write this 3 as, इसे क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टेक इट हेयर एंड राइट इन दिस वे, 3s g11 plus 2g12 lambda plus g22 lambda square kn, इसे इधर लेगा, इज इक्वल टू b11 प्लस 2v12 लैम्डा प्लस b22 लैम्डा स्क्वायर। ये हमने करा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे इधर लेंगे। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, डिफरेंशिएट with respect to lambda and putting dkn over d lambda is equal to 0, है ना। ये 0 पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकालनी है, तो उसके लिए पहले हमें इसके निकालने पड़ेंगे स्टेशनरी पॉइंट्स, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 पॉइंट्स आएंगे, उन्हीं को जो वो आते हैं k1 k2 वही आपके प्रिंसिपल कर्वेचर होते हैं। तो डी के एन ओवर डी लैम्डा इज इक्वल टू 0। जैसे विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा करेंगे तो यहाँ बाई पार्ट होगा, देखो ये बाई पार्ट फर्स्ट टर्म पहले इसे कर दें अगर, तो इट विल बी व्हाट, g11 तो 0 हो गया, यू हैव 2 g12 प्लस 2 लैम्डा g22 kn as it is plus this term into dkn over d lambda, ये तो लेफ्ट साइड आएगी, इज इक्वल टू सेम थिंग हेयर, इसका फर्स्ट का करा तो b11 तो 0, तो यू हैव 2b12 प्लस 2b22 लैम्डा, ये आ जाएगा। यहाँ पे तो एक ही टर्म था लैम्डा का। अब डी के एन ओवर डी लैम्डा तो 0 है आपके पास, तो यू हैव ओनली, तो दैट मीन्स व्हाट यू गॉट हियर, ये तो 0 हो गया, हमें 0 पुट करना है इसको, तो यू हैव ओनली फर्स्ट दिस टर्म, so we get
this implies that twice G12 plus twice lambda G22 Kn is equal to twice B12 plus twice B22 lambda, है ना, ये टर्म है, ये 0 है, यहाँ में 2 भी कैंसिल हो गया, तो यू गॉट Kn. Kn is how much? B12 plus B22 lambda upon G12 plus G22 lambda. ये Kn की वैल्यू आई. सपोज इसे नंबर A कर लेता हूँ मैं. ध्यान रखना हमें Kn के रूट्स निकालने, K1 K2 निकालना. Now again this 3 from this 3 equation from 3, थर्ड नंबर मैंने किसे दिया था, ये जो थी इक्वेशन, ये जो हमने लिखा था, इसी को आई कैन राइट फर्दर. 3 कैन बी रिटन एज 3 फ्रॉम, मत लिखो, अगेन लिखिए, अगेन 3 कैन बी रिटन एज Kn is equal to B11 plus B12 lambda plus lambda times B12 plus B22 lambda upon G11 plus G12 lambda plus lambda times G12 प्लस G22 लैम्डा. ठीक है, क्या किया हमने, 3 इक्वेशन को, जो थर्ड इक्वेशन थी, इसे 2B12 लैम्डा को ब्रेक कर लिया, 2B12 लैम्डा प्लस B12 लैम्डा, तो इसे 4 टर्म्स में लिख लिया इसके फैक्टर्स करके. तो पहला फैक्टर हो गया B11 प्लस B12 लैम्डा, दूसरे में लैम्डा आउटसाइड प्लस B12 प्लस B22 लैम्डा, ये लिखा है. इन्हें ऐड करोगे B12 लैम्डा प्लस B12 लैम्डा, it will become 2B12 lambda, वही जो आपका 3 में था. Suppose it is B. So both are the values of Kn. So from A and B, we get both are equal, है ना. क्या मिला हमें, we get B12 plus B22 lambda upon G12 plus G22 lambda, this equal to B11 plus B12 lambda plus lambda times B12 plus B22 lambda upon G11 plus G12 lambda plus lambda times G12 plus G22 lambda. ये एक हमें मिला, है ना. अब यहाँ पर अगर देखें आप, इट इज लाइक, देखिए, इफ यू हैव x अपॉन y इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा x अपॉन b प्लस लैम्डा y, ये कुछ इस टाइप की रिलेशन है. अगर ये x मान लूँ मैं, ये y, तो क्या है ये, सपोज इट इज x, इट इज y, x अपॉन y इज इक्वल टू, इसे a मान लें, इसे b, a प्लस लैम्डा x, ये भी x सेम है, ये भी y. ओके, तो अगर ऐसा होता है तो इससे क्या क्वेश्चन मिलती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल बी गेटिंग ay प्लस लैम्डा xy इज इक्वल टू bx प्लस लैम्डा xy, ये कैंसिल हो गया, यू विल बी गेटिंग x अपॉन y इज इक्वल टू a अपॉन b. तो सेम थिंग हियर, if you have this, so you will be getting x upon y is equal to a upon b. So I can write Kn is equal to P11 plus P12 lambda upon G11 plus G12 lambda is equal to B12 plus B22 lambda upon G12 plus G22 lambda. ठीक है, ये x था, ये y था, x upon y is equal to a plus lambda x, b plus lambda y. It gives x upon y is equal to a upon b. ये कैलकुलेशन करके दिखाई है हमने साइड में.
From this it is coming. Suppose it is equation 4. It is equation 4. Okay. और this can be written as, इसको अगर हम सॉल्व करें तो फिर पहले फर्स्ट टू ले लें, अगर this can be written as, इन दो को ले लें तो you will be getting B11, you will be getting B11, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो B11 प्लस B12 लैम्डा इज इक्वल टू KN G11 प्लस KN G12 लैम्डा, लैम्डा का टर्म अरेंज कर लें एक साथ तो यू विल बी गेटिंग B11 माइनस KN G11, इसे इधर लेगा और लैम्डा के टर्म लिख ले एक साथ तो लैम्डा आउटसाइड B12 माइनस KN G12 इज इक्वल टू 0. एक क्वेश्चन ये मिली. Similarly, by taking first and third ratio, you will be getting B. Similarly, I am taking off first and third. It will be giving you B12 minus G12 Kn plus lambda B12 minus B12 minus, sorry, B22. Now 1 to the 2 minus B22 थर्ड रेशियो लिया तो यहाँ B22 है माइनस KN G22 इज इक्वल टू 0. यहाँ से अगर हम लैम्डा एलिमिनेट कर लें, एलिमिनेटिंग लैम्डा इन टू इक्वेशन से, एलिमिनेटिंग लैम्डा, ओके, फ्रॉम दीज टू वी गेट, लैम्डा की वैल्यू निकालिए, इसमें रख दिए उठा के, वी गेट B11 माइनस KN G11, B22 minus KN G22 is equal to B12 minus KN G12 होल स्क्वायर. ये मिलेगा आपका ना, लैम्डा एलिमिनेट करा इससे, एक वैल्यू निकाली यहाँ रख दी, ये होल स्क्वायर. इसको अगर आप ओपन करें मल्टीप्लाई करके तो इट विल बी व्हाट, मल्टीप्लाई करें इसमें तो यू विल बी गेटिंग B11 B22 माइनस B12 स्क्वायर माइनस G11 B22 माइनस 2G12 B12 प्लस G22 B11. ये सब आएंगे KN के साथ, है ना, KN के साथ टर्म्स आएंगे, इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसमें और इधर स्क्वायर के टर्म्स आ जाएंगे सारे आपके पास, G11 G22 माइनस G12 स्क्वायर KN स्क्वायर. ये KN स्क्वायर का टर्म आएगा यहाँ पे, एक टर्म स्क्वायर का जहाँ मिलेगा आपको और एक स्क्वायर टर्म ये मिलेगा. So it is what? Now you know it is your B and it is your G. So I can write or B minus G times, देखो यहाँ पर ये जो G11 B22 था, इसको मैं G11 को अगर 22 में लिखना चाहूँ तो I can write G times G22 B22 प्लस ट्वाइस G, सुपरस्क्रिप्ट लिख लिया हमने, ये इसे सुपरस्क्रिप्ट में चेंज करा है. इसको G11 को सुपरस्क्रिप्ट लिख दिया G22. कैसे लिख दिया? बिकॉज यू नो G11 इज इक्वल टू G22 इंटू G, ये रिलेशन है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में, तो G22 इंटू G. सिमिलरली दिस एंड प्लस G ऑफ KN स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इसकी वैल्यू रख दी G से उठा के चल लेगा और KN स्क्वायर इज इक्वल टू 0. और यू कैन राइट B माइनस, सो इसको अगर हम B से डिवाइड कर दें, नहीं G से, और पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखूं तो आई कैन राइट KN स्क्वायर, G से डिवाइड किया, यहाँ पे भी G कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम BII KN प्लस B अपॉन G इज इक्वल टू 0. ये जो पूरा कोएफिशिएंट है ये BII है. BII क्या था, ये हमने पीछे डिस्कस किया था,
कि बी आई जे की वैल्यू क्या होती थी, बी आई जे वाज, अगर जे ले लूँ मैं, इट्स वैल्यू वाज बी आई के जी के जे, ये बी आई जे की वैल्यू होती है। तो बी आई आई विल बिकम बी आई के जी के आई ना, यहाँ पे पुट करोगे ये सारी वैल्यूज आ जाएगी। दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 5। इसके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स आएंगे, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर द प्रिंसिपल कर्वेचर्स। क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स जो k1 k2 आएंगे वही आपके प्रिंसिपल कर्वेचर होंगे। और व्हाट इज मीन कर्वेचर? मीन कर्वेचर इज कॉल्ड द सम ऑफ द रूट्स k1 प्लस k2, इसे हम m से डिनोट करते हैं, k1 प्लस k2। सम ऑफ द रूट्स इज व्हाट? सम ऑफ द रूट्स इज माइनस b अपॉन a, तो माइनस ऑलरेडी है, इट विल बी b I I, that means b11 plus b22, and product of the roots is called Gaussian curvature. Gaussian curvature, it is called product of the roots, इसे हम k से डिनोट करते हैं, k1 k2। product of the roots is what?